Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Ahmed Uzair and I am part of FANA Executive Board. And today we are here for the fifth webinar in the series that we started almost 1.5 years ago. Today with us is Mr. Shahryar Mahmood, who will be talking uh, about his extensive experience in the product management and technical sales. And We basically started this series almost in the beginning of 2019 to bridge a gap between academia and the industry. And like I said before, so far we have done almost 14 webinars on various topics, and all of them are uploaded to our YouTube channel. So you can always access those via our website or our YouTube channel. With that being said, I will turn over to Mr. Shahryar Mahmood. Just to give a quick background, he is a graduate of 2000 batch from FAST Islamabad. He then later on to work, actually pursue his MBA from LUMS, Lahore University of Management Sciences, and then he subsequently worked with Jazz, Oracle, IBM, Salesforce, and currently he is working with Qualtrics. And he can probably throw some more light on his background. Without any further ado, over to you, Shahryar bhai. थैंक यू यार बाबा शुक्रिया आपका आपने मुझे इनवाइट किया जैसा कि आपने बताया मैं आई एम फ्रॉम द बैच 2000 फ्रॉम फास्ट बैचलर्स कंप्यूटर साइंस किया है at the moment like I mean if about myself I guess I'm a father of two living in Seattle at the moment. I've been around in a few places and I'll get into my experience in a while but just a normal guy. I'm interested in music and interested in sports and just keeping myself busy overall. And just to give you a disclaimer, मेरे बच्चे पीछे से शायद आ जाए थोड़ी देर में तो मतलब don't mind it. So I started my my studies for bachelor's in FAST in 2000. It's about 20 years ago, which is like a statement in itself. I guess, because it seems like a lifetime away, 2 decades guzar gaye. When I was graduating in 2004, I actually, joined a sort of a smaller company called Target Systems. ये मेरे एक दोस्त ने मुझे recommend की और आखिरी सेमेस्टर में मैंने इधर काम शुरू कर दिया फिर उधर ही continue किया फिर एक कंपनी थी Ultimus. It's not that big in Pakistan anymore. So गुलिस्तान कॉलोनी में उनका ऑफिस था पिंडी में रावलपिंडी में तो I joined that. उसके अंदर मैं एज अ डेव था लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज का डेव तो मतलब after a product is sold, any kind of customization people needed, that was my role. So I was basically developing for those kind of scenarios where people had already bought Ultimus. And फिर उसके अंदर मुझे थोड़ा सा सेल्स का भी एक्सपोजर मिला लेकिन फिर मैं एमबीए करने चला गया लम्स 2 साल मैंने एमबीए में लगाए और फिर उसके बाद मोबलिंग में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे आया तो उधर उस जमाने में वैस वैल्यू एडेड सर्विसेज होती थी जो मतलब एनीथिंग दैट इज अदर देन वॉइस एंड टेक्स्ट वाज एक्चुअली वैस सो इंटरनेट छोटी मोटी एप्स उस जमाने में एसएमएस से रिलेटेड बहुत चीजें थी तो वो दे वर ऑल अंडर दैट सॉर्ट ऑफ एन अम्ब्रेला फिर उधर से मैंने आई जॉइंड ऑरेकल उसके अंदर मैं मार्केटिंग मैनेजर था पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल और श्रीलंका का फिर उसके बाद वहाँ से मैं ऑरेकल ऑस्ट्रेलिया चला गया वहाँ मैं आई स्टार्टेड माय करियर इन ऑस्ट्रेलिया एज अ सेल्स एनालिस्ट which I stayed for about 6 to 8 months, not long, but the role was to actually book sales and make sure कि सारे जो deals हैं वो close हो रही हैं और उधर एक मतलब एक बहुत different experience था मेरे लिए to come from marketing into sales and then looking at all how money is actually exchanging hands and things like that. It was a very very different kind of experience. Then I wanted to move out of that role because that was kind of like a stepping stone kind of role to get myself in the door in the Australian market. But it ended up कि वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वहाँ पर the stuff that I wanted to do like product marketing, product management wasn't there. So I ended up in Oracle doing pre-sales for products because I went to my manager. I was like, what should I do?
and he said you can go to consulting team. वहाँ मैं गया, वहाँ उन्होंने बताया कि जी यहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ी टफ है, ये वो, तो मैंने कहा यार इधर काम नहीं बनेगा। खैर फिर मैं सेल्स वालों के पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास बिजनेस नॉलेज है, तुम बिजनेस साइड से आ रहे हो और तुम्हें टेक का भी पता है, तो व्हाई डोंट यू बिकम अ टेक सेल्स। तो उस वक्त मैंने वो डिसीजन ले ली। दिस वाज अबाउट 2000 and late 2010 maybe 2011, but it turned out to be a really tough thing to do because I wasn't expecting the मतलब जो उधर 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 जो expectations थी बड़ी different थी from somebody who was coming to tech sales. Or just to let you know, I never wanted to be in sales when I was in college and university because I never thought that it was something that I could do. लेकिन lo and behold काफी tough time था वो, लेकिन I learned really a lot in there. फिर लेकिन वहाँ से जब मैं I got out of there in 2014 and went into ExactTarget, which was being acquired by Salesforce at that time, and so that seemed like a really good fit for me because वो digital marketing और मेरा business knowledge का एक बड़ा अच्छा mixer था. Next slide. तो उसके अंदर वहाँ पर फिर I really enjoyed my time and I really उधर भी काफी learning थी obviously. काफी मेरे ख्याल 3-4 साल ही हुए थे टेक सेल्स में उस वक्त, लेकिन I started working in enterprise space at that time and learned a lot about how to demo the product, how to make sure that things are in the things making sense for the people that you're actually selling the product to, because selling is very it's an art basically. It's not like you go and sell a shoe or something or clothes or something. It's like you are selling millions of dollars of product and it's basically vaporware. एक मतलब सॉफ्टवेयर है, एक सीडी आप समझ दे रहे हैं किसी को, आप कह रहे हैं इसके $2 million में दे दो, तो वो मतलब क्यों देगा? That is the main thing that you have to understand in your mind. Like that's what sales is about. And then I went into IBM for a little while. I didn't enjoy it that much because मैं बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में आया था और मुझे बहुत बहुत जबरदस्त लगा ExactTarget में, लेकिन ExactTarget पे एकदम Salesforce बन गई तो वो 2000 बंदों से एकदम वो 14,000 लोगों की कंपनी बन गई by the end of those 2 years. So I was like मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, लेकिन that was something that I really craved. And then IBM जाके 6 महीने में मैं I was like I cannot do this. In fact जब मैं IBM join करा था उस वक्त मुझे Qualtrics ने approach किया, तो मैं I wasn't really thinking seriously about them at that time. लेकिन फिर in 2017 again when they approached and things got further along the road, then I joined Qualtrics, and Qualtrics was about a company of about 1,000 people at that time, and since then they've hired around 3,000 people. And I was in Melbourne in that role as well. तो मैंने फिर वहाँ पर 1-1.5 साल टेक सेल्स में गुजारा, फिर यहाँ पर सियाटल मूव हो गया मैं, और सियाटल में 1 साल मैंने टेक सेल्स में गुजारा, और मैं अभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वापस शिफ्ट हूँ. It was like I've come full circle, so to speak, but it was a long and very illuminating path. और मतलब काफी जगह में रहा हूँ, different sales की वजह से काफी शहरों में गया, काफी different type के लोगों से मिला. So it's been an interesting path. Chale, thank you very much for your detailed background. Very interesting journey, I must say. लेकिन अगर पहले before I jump into like the session, आपने थोड़ा सा टच किया बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में जाने वाला, उसको अगर आप क्विकली कवर करना चाहें तो. हाँ जरूर, क्यों नहीं यार. ये डिपेंड करता है आप हैं किधर. एक्चुअली मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि मेरा ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस कैसा था, और वहाँ पर मैंने मतलब हाउ डिड आई एक्चुअली maneuver those two things. Like in Pakistan में जिस तरह I joined Target Systems, when I joined it was like 10 लोगों की कंपनी थी बहुत, और फिर उधर से मैं Ultimus गया, Ultimus उधर 200 लोग हायर थे, तो वो उधर के हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी थी Ultimus, right, compared to Target Systems. So उधर का एक्सपीरियंस डिफरेंट था, इधर का एक्सपीरियंस डिफरेंट है. ऑस्ट्रेलिया में जब मैं Oracle से उधर गया तो मतलब आई थिंक दोनों की अपनी अपसाइड्स होती हैं, लेकिन रेड टेप ज्यादा होती है बड़ी कंपनी में. सही, और आपका जो रोल होता है वो डीप होता है, वाइड नहीं होता.
आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो किसी एक चीज में होता जाता है then you keep going deep into it. सही. Then eventually things just click sometime, and you go to the top level, and then you're like, for instance, in Oracle, I never, मतलब in my 6 years I never met anybody above a VP level, जो जिससे आप कह सकते हैं वहां पर ना. लेकिन एग्जैक्ट टारगेट में भी मतलब GM CEOs का एक्सेस बहुत इजी था. और Qualtrics में तो before I joined actually Qualtrics was actually even smaller, तो उसके tech sales is a very important role because they are also conduit between sales and product management, so they're हर जगह उसमें मेरे 10-12 इंटरव्यू होते थे. तो इस तरह नहीं है कि आपको एकदम वो 2-3 इंटरव्यू के बाद रख लेंगे. सही. तो उस वजह से फिर मतलब उधर CEO जो है वो अपने घर खाने पे बुलाता था जब आप यूटा जाएं. तो इस तरह की चीजें आपको उधर मिलेंगी छोटी कंपनी में. आपको एक्सपोजर डिफरेंट टाइप का मिलेगा. और छोटी कंपनी मैं आई हैव नॉट गॉन बिलो मे बी 1,000 पीपल. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सही. तो ये जो उससे छोटी है वो स्टार्टअप जितना आप करीब जाते जाएंगे उससे उतना ज्यादा रॉ एक्सपीरियंस होता जाता है. तो इट्स लाइक अ स्लाइडर. आप कितना रॉ जाते हैं एक्सपीरियंस और कितना आप रिफाइंड जाते हैं. सही. तो रिफाइनमेंट में जो नेगेटिव है वो है ऑब्वियसली रेड टेप है. And then it's harder for you to actually talk to the people above you. आपने अपनी input दिखानी होती है. वो input दिखाना सर कभी-कभी मुश्किल हो जाता है. There are multiple things that go around there. So I wouldn't say one is easier than the other. Both have their like own pros and cons. लेकिन I would say कि अगर आप graduate कर रहे हैं और आपको बड़ी कंपनी का पाथ मिलता है तो उसके अंदर what you will learn is processes and how a big organization works. That's very good knowledge actually. उसको छोटी कंपनियों में भी उसका वो किया जाता है, मतलब बड़ी उसकी वैल्यू की जाती है कि यार ये बड़ी कंपनी से आ रहा है, Oracle से आ रहा है, Salesforce से आ रहा है, इसको पता होगा चीजें कैसे होती हैं. Right. लेकिन आप छोटी कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें ऑब्वियसली उन प्रोसेसेस का विजिबिलिटी नहीं होती. लेकिन आपका जो नॉलेज होती है वो काफी वाइड स्प्रेड होती है. सही. तो डिपेंड करता है आप किस तरह के रोल के बारे में जा रहे हैं. कुछ सम रोल्स वांट ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज, सम रोल्स वांट डेप्थ ऑफ नॉलेज. सो डोमेन नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन रोल्स में. सही. चलें, I think we will now delve down a little bit into the topic. Or obviously, this conversation is going to be around product management or technical sales जिसमें आपका ज़्यादा experience है. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर quickly मैं उसके origins की तरफ जाना चाहूँगा कि आपने FAST से 2004 में computer science करके you went for your MBA almost right after. तो इसके पीछे क्या राज था और किस चीज ने आपको इस बात पे मोटिवेट किया कि इंस्टेड ऑफ परसुइंग रेगुलर के एमएस कर लें या तो आप यू वेंट फॉर एमबीए? यार एक्चुअली उस वक्त जो था ना मार्केट क्रैश हुई थी 2001 में कंप्यूटर्स की ना. तो मतलब एज अ सॉफ्टवेयर वाज लाइक डाउन एंड एवरीबॉडी इज लाइक यार अब हम क्या करें. एंड आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम नॉट रियली गुड एट कोडिंग एंड स्टफ लाइक टेक्निकल स्टफ में उतना अच्छा नहीं था. तो मतलब मेरे लिए एक MBA एक पाथ ऐसा लगा मुझे कि मैं उसको परस्यू कर सकूं. और वहां पर उस वक्त ये पाकिस्तान में तो मैं आई डिडंट वांट टू लीव पाकिस्तान व्हेन आई ग्रेजुएटेड फास्ट. और लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने MBA किया. तो MBA करके मैं आया मार्केट में. सो लाइक 2008 2007 2008. और उस वक्त फिर मार्केट बड़ी डिफरेंट हो गई हुई थी. थिंग्स वर डिफरेंट. उस जमाने में ये था कि MBA की वैल्यू थी टिल 2007 तक आप समझ लें थी. उसके बाद वो डाइल्यूट होती गई है. ठीक है. अब पीपल डोंट प्रेफर टू गो दैट MBA राउट. एंड फ्रैंकली अगर आपने प्रोडक्ट में भी आना है तो कम से कम US में आई डोंट थिंक एनीथिंग इज स्टॉपिंग यू. आप छोटा मोटा कोर्स भी कर लें अगर आपने करना ही है तो इवन दैट हेल्प्स. बट इवन लाइक आपका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. मुझे एक दफा किसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस दी थी लाम्स में. उसने कहा था कि आपकी जो डिग्री होती है वो उसकी वैल्यू 5 साल तक रहती है. उसके बाद आपका एक्सपीरियंस काम करता है. तो अगर आपने 5 साल कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस कर लिया है तो आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस है ना दैट इज हेवियर ऑन द रेस्ट ऑफ द 4 years that you've done because people think for instance बहुत सारे लोग आपने पता नहीं देखा है कि नहीं. हाँ US में तो बहुत कॉमन है साइकोलॉजी की डिग्री करके तो उसके बाद वो कंसल्टेंट बने होते हैं. हाँ बिल्कुल बल्कि उन्होंने कंसल्टिंग में होता है.
उनका हाँ करियर फिर साइकोलॉजी में नहीं होता, लेकिन हाँ वो साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं कंसल्टिंग। हाँ, या कोई इंग्लिश लिटरेचर में किया होता है बैचलर या इस तरह। हाँ हमारे उधर है कि वहाँ पाकिस्तान में ये है कि जी आपने अगर एक दफा कंप्यूटर साइंस में आपने हाथ डाल दिया है हाँ तो अब आप मरते दम तक उधर ही रहेंगे। हाँ, और लेकिन मैं ये हमेशा मैं इस चीज के खिलाफ ही था। और आए मेरे ख्याल है मैं बोर भी बड़ी जल्दी हो जाता हूँ चीजों से, तो इससे भी हम्म, काफी फर्क पड़ा, तो सही मैंने फिर सही इस तरह काफी चीजें ट्राई की थी। सही तो सही। एमबीए का राउट जो था वो अच्छा रहा मेरे लिए। हम्म लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो काफी उसका नुकसान हुआ, क्योंकि जो मतलब दो टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, एक जहाँ पर मतलब कोई चीज बन रही होती है, एक वहां जहाँ पर कंज्यूम हो रही होती है। हम्म ऑस्ट्रेलिया इज अ कंज्यूमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो वहां पर सेल्स और कंसल्टिंग की नौकरियां हैं। उधर इस चीज की नौकरियां नहीं है, आपके डेवलपमेंट का कुछ नहीं है। हम्म, तो उधर मतलब प्रोडक्ट मैनेजर्स भी बड़े सेल्स ओरिएंटेड होते हैं और वो सारा, तो उधर वहां पर उनको था कि हमें एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए। सही। आई हैड टू हाइड माय एमबीए फॉर लिटिल व्हाइल, हम्म, at least four years. A little while, when I say little while, it's like 4 years. अच्छा अच्छा। लेकिन वो जब मैं एग्जैक्ट टारगेट वगैरह के टाइम पे आया तो वो हम्म, एक एक्चुअली मेड सेंस, और उधर जाके उसकी वैल्यू फिर बनी हो। फिर ये सही मतलब इवन जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मैं कर रहा था उसका काफी फायदा हुआ है कि हम्म, कहने कि मैंने एमबीए किया हुआ है। सही। लेकिन एमबीए इज अ वेरी ट्रिकी वन, लाइक आई मीन हम्म आई थिंक उसको डिपेंड करता है आप किधर है। एमबीए का जो मेन फायदा होता है वो होता है कि आप उसके उसकी फ्रेटर्निटी में आते हैं। जैसे अगर आप हम्म पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं तो लम्स का एमबीए बहुत जबरदस्त है, हम्म ठीक है, बिकॉज इतने सारे लम्स के एमबीएज हैं। मतलब मेरे सामने लम्स के एमबीए की सीवी आएगी, मुझे पता होगा कि यार वो एक बंदा है प्रोसेस से गुजरा हुआ है। प्रोसेस से गुजरा हुआ है, उसको काम ऐसा ही है कि मतलब मैं कोडर हायर कर रहा हूँ, फास्ट का कोडर मेरे सामने आया, मुझे पता है यार कोडिंग तो आती है, हाँ उसको तो साइड पे कर दो, बाकी चीजों पे इससे बात करते हैं, सही ठीक सही। है। चल। So that is sort of the help that you know the sort of effect that you get with an सही MBA as well. तो सही। MBA की fraternity में फिर ये होता है कि आपके मतलब जैसे हम आप हार्वर्ड के MIT के MBA कर लें तो उसके फिर उनकी उनके अपने एक पूरा ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर जॉबें आ रही होती हैं, सही वो एक दोस्त दूसरे को कर रहा है, वो मतलब उधर उसका फायदा है। सही। लेकिन अगर आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, मतलब अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान में बहरिया से कर लें, बहरिया का भी अच्छा नेटवर्क है मेरा ख्याल है, लेकिन आप मतलब बहुत ही नीचे ये वो ऑनलाइन कर लें, फॉर इंस्टेंस अलामा सही इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सही एमबीए, सही। इट वोंट ऐड यू दैट वैल्यू हम्म, how that you used to at that time, like उस वक्त होता है सही एमबीए यार उसको बिजनेस के बारे में सब पता है, इसको रख लो, सही। मैनेजर लग जाएगा जी। अच्छा अब नहीं ऐसा होता। सही। तो चलें आपको हाँ नहीं, मैं इस टॉपिक पे मैं दोबारा बाद में आता हूँ, लेकिन लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो आपका एक एक्सपर्टीज है। थोड़ा सा उसको डिफाइन करते हैं कि क्या प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, और और हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम टेक्निकल सेल्स। देखो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है ना, it is a very sort of a vague sort of a word, so to speak. Like हर कंपनी इसको बड़ी डिफरेंट तरीके से डिफाइन करती है। मतलब आप प्रोडक्ट में आप इवन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देख लें, एक प्रोडक्ट मैनेजर एक हर इंडस्ट्री में आपको मिलेगा, आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगा, आपको टेलको में मिलेगा, आपको जो ये मेडिकल हार्डवेयर वाले हैं उनमें मिलता है, ठीक है। तो ये रोल it is actually even within those industries, like Amazon defines a product manager differently versus Google defines an Amazon product manager differently. So it is very hard to say कि यार ये एक definition है product manager की और उसके हिसाब से, लेकिन कुछ चीजें जो कॉमन है उन सब में वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो उनमें ये होती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, जो सब आपको कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोडक्ट, लाइक अ सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंपनी, राइट। सो आप P&L यानी प्रॉफिट लॉस के उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। और सो सीईओ क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यू सीईओ हु ओन्स अ कंपनी cannot go cannot go to somebody and say this is not my job, because everything is the CEO's job. You know, their job is to make sure that everything works, right? राइट। So product manager doesn't get to say this is not my job, ठीक है जी। प्रोडक्ट मैनेजर अगर सेल्स वाले को प्रॉब्लम है, सेल्स वाला आपके पास आएगा तो आपने उसको हेल्प करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कंसल्टिंग वाला बंदा है जिसको आपने प्रोडक्ट बेच दिया है, अब वो कस्टमर कुछ कह रहा है, कस्टमर की मिसअंडरस्टैंडिंग है, बेशक सेल्स वाले ने कुछ कहा है, वो प्रोडक्ट मैनेजर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ठीक है। डेव वाला बंदा आता है, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसका टाइम मैनेज करना प्रोडक्ट मैनेजर का प्रॉब्लम है। सो मतलब यू लाइक अ कैच ऑल काइंड ऑफ ये वो हो जाता है। लेकिन इसके अंदर फिर ये है कि ऐसे रोल के अंदर आपको फिर वो बनाना अपना करियर पाथ, वो भी एक बड़ा
बड़ा जरूरी है कि आपको डिफाइन करने पर आपको प्रोडक्ट आपको हर प्रोसेस डिफाइन करना है. अगर हम्म, सेल्स वाले बंदे ने कोई एस्केलेशन लानी है तो उसका प्रोसेस क्या है ये, और मेक श्योर के मतलब कि वो ये सारे जो एवेन्यूज हैं पहले कर चुका है फिर मेरे पास आ रहा है. या जो वो है सपोर्ट वाला बंदा है, सॉरी जो इम्प्लीमेंटेशन वाला बंदा है वो सपोर्ट के थ्रू बात कर चुका है, उसे प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन नहीं मिला तो मेरे पास आ रहा है. So these are the things that matter eventually, and then you make those processes, and then you also define the roadmap of where things are going. So defining a roadmap means कि जिस तरह for instance अब आप समझ लें आप Zoom के product manager हैं, ठीक है, तो अब आपने ये नहीं सिर्फ देखना कि ये business as usual सही चल रहा है, चीजें सही चल रही हैं, आपने देखना मैं enhancements क्या कर सकता हूँ, सही. क्या चीजें इसमें मेरे competitors ऐसी क्या चीज कर रहे हैं जो मेरा product नहीं कर रहा और मुझे उसको बेहतर करना है अपने product में. ठीक है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है, आपको मार्केट के हिसाब से देखना है कि you know what kind of features do people want, and then when you release those features you have to test them, you have to see. So there's a whole you know a pre-sale part of it, the post-sale part of it, but it's all about the P&L, how much profit you're making and how much loss you're doing and how much investment you're doing in the product. सही. और फिर टेक्निकल सेल्स को आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे उससे? Technical sales is a very interesting role, and I think people in coming out of FAST specifically don't know about it. And उसका reason ये होता है कि वहाँ पर दो तीन टाइप के roles होते हैं ना, people cover करते हैं जी, product manager बन जाऊँ मैं, या dev lead बन जाऊँ, या मैं किसी बड़ी अच्छी कंपनी में मैं software developer लग जाऊँ. Tech sales is a good conduit between a technical knowledge, your technical knowledge, and your business knowledge. So what a technical sales guy does is it makes sure कि जब आप actually जो sale होती है वो समझनी जरूरी है. Product की जो sale होती है किसी software product की, उसके अंदर जो main बंदा होता है वो एक sales का बंदा होता है. That's not a pre-sales या technical sales नहीं होता वो बंदा. सही. उसका काम होता है relationship management, उसका काम होता है कि customer को खुश रखना, customer के कोई problems हैं उनको देखते रहना कि मतलब जो soft problems हैं कि मेरा deal कितनी हो रही है, पैसे कितने हैं, things like that. और उसके अलावा जो टेक्निकल सेल्स होता है उसका काम होता है कि कस्टमर की टेक्निकल वो है ना क्वेरीज उनको सेटिस्फाई करना, मेकिंग श्योर कि जो बिजनेस प्रॉब्लम उनके पास लेके गए हैं, जो उन्होंने जिसको हम रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं उनसे, वो उनसे रिजॉल्व होती है. ठीक है, और उसके अंदर आपके जो आपका प्रोडक्ट है वो वैल्यू ऐड करता है. ठीक है, अब जैसा पुराने जमाने में ये होता था कि आपके पास ये जैसा सीबल वगैरह थे या ईआरपी सिस्टम्स थे बड़े बड़े, तो उसके अंदर पहले हार्डवेयर होती थी, फिर उसके ऊपर ओएस की लेयर होती थी, फिर उसके ऊपर डेटाबेस की लेयर होती थी, फिर मिडलवेयर लगती थी, फिर कहीं आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल होता था, फिर आपके प्रोडक्ट ने अगर किसी और को भेजना है तो उसने मिडलवेयर के थ्रू भेजनी है चीजें. अब ये सारा जो स्टैक है ये खत्म हो चुका है. अब किसी ने प्रोडक्ट बेचना है तो वो जाता है वेबसाइट पे जाके दिखाता है, ये देखो मैं लॉग इन करता हूँ इसमें, ये देखो सीआरएम खुल गया, ये देखो ईआरपी खुल गया, ये देखो मैंने अपना वॉइस ऑफ द कस्टमर प्रोग्राम मैंने देखो कितने आराम से डैशबोर्ड पे लगा दिया. तो अब उसकी आसान उस क्लाउड और SaaS सॉल्यूशंस की वजह से चीजें तो बहुत आसान हो गई हैं टेक में, लेकिन अब सारी बात ये आ गई है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट विद अदर पीपल्स प्रोडक्ट्स. लाइक हाउ डू यू go in and say कि अगर आप Salesforce बेच रहे हैं CRM, how is your CRM better than an Oracle CRM or a Microsoft CRM? They're all cloud as well. What is it exactly that Salesforce provides that nobody else provides? Ecosystems of apps then comes in, right? कि उन्होंने अपना एक ऐप स्टोर बना दिया, आपने उसको, आपके अगर मार्केटिंग सोल्यूशन नहीं है, आप एग्जैक्ट टारगेट का इस्तेमाल कर लें, आप मार्केटो इस्तेमाल कर लें, आप कुछ और इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपके CRM में सारी डाटा आएगा. ठीक है, और उसकी फिर अब सिर्फ ये नहीं होता कि फॉर इंस्टेंस अगर आप ये स्लाइड वाला जो भी हम गूगल स्लाइड इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आप ये किसी को जाके बेचने जाएंगे तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि यार इसके अंदर देखो तस्वीरें यूं करके आती हैं, इसमें मतलब इसमें आप एनिमेशन भी डाल सकते हैं. People don't really care about that. Every slide tool has animations in them. आप Prezi इस्तेमाल कर लें, आप PowerPoint इस्तेमाल कर लें. The main thing is the ease of use. आप शेयर कर सकते हैं. ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, आपके लैपटॉप पे नहीं फाइल पड़ी हुई, आप एक सेंट्रल लोकेशन में एज अ बिजनेस यू ओन के वो कहाँ है. अगर बंदा अगर मैं फॉर छोड़ के चला जाता हूँ, मेरी सारी प्रेजेंटेशंस आपके पास हैं एज अ कंपनी. ठीक है, फिर शेयरिंग ऑब्वियसली इज इजियर. ठीक है,
फिर you can put your ideas on, present them to people in a very, easy and relatable format. Now, this is the difference between a technical salesperson and a salesperson. Salesperson will go and talk about, features and stuff, but you need to go and talk about the problem that you solve. And मतलब वो इतना बड़ा वो बन जाता है कभी कभी, खासतौर जब बड़े कस्टमर्स के पास जाते हैं, इवन छोटी सी चीजें कभी वो हो जाती है कि मतलब आपके प्रोडक्ट में एनोनिमिटी सही तरह नहीं इम्प्लीमेंटेड, और आप एम्प्लॉय डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो द कस्टमर माइट से कि भाई इसकी वजह बाकी सारी चीजें ठीक है, बेशक तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आई कैन, बिकॉज it's a legal problem, people get sued on this stuff. So these are the things that technical sale does. So technical sales then takes all this feedback that they collect about the product and they take it to the product managers. And they are actually, मतलब ठीक है market research कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन जो technical sales को feedback मिलती है वो मतलब almost किसी और को नहीं मिलेगी. मतलब आपको prospects भी दे रहे हैं जो आपके customers नहीं हैं, आपको अपने customers भी दे रहे हैं जिनको आप upsell कर रहे हैं, ठीक है ना. तो वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बहुत सारे जो छोटी कंपनियां खास तौर पे, उनमें ये बहुत ज्यादा होता था. जिस तरह एग्जैक्ट टारगेट में बहुत ज्यादा था ये चीज के प्रोडक्ट मैनेजर से इंटरेक्शन विद टेक सेल्स वाज रियली फ्रीक्वेंट. सेम इन एग्जैक्ट टारगेट, लाइक आई वाज, आपका हर जो प्रोडक्ट रिलीज होती है उसके अंदर वो जीरा में टिकट बनाते हैं, एक पूरा उसका लॉन्च ट्रैकर, उसके अंदर हर बंदे का एक टिकट है, उसके अंदर सपोर्ट टीम का टिकट है, उसके अंदर क्यूई टीम का, उसके अंदर टेक सेल्स का भी टिकट है कि तुम जाके देख कर आओगे कि this works, whatever we've said, and it solves a business problem. And so tech sales को लोग बहुत ignore करते हैं, and you shouldn't ignore that, especially coming out of fast. तो अगर कंपेयर किया जाए दोनों रोल्स को, प्रोडक्ट मैनेजमेंट को और टेक्निकल सेल्स को, so would you say कि टेक्निकल सेल्स ज़्यादा इंटेंसिव है क्योंकि इसमें you're covering the technical side as well as trying to sell the product as well? So the technical sales, there is an amazing role to start in. Like as I would, मुझे भी I didn't know about this role, ठीक है, और मुझे सेल्स नहीं करनी थी जब मैं MBA में भी था. लेकिन मुझे याद है कि मेरे एक अंकल थे, he was GM in Caltex at that time. तो उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने this stuck with me, like this has been like 15-16 years ago. He said that to me. He said that अगर जिंदगी में जिस बंदे ने सेल्स में काम नहीं किया ना, वो they cannot climb the corporate ladder. And I never understood what he meant at that time, but as soon as I've done this now, I almost think that tech sales was more important to me than product management was, because eventually आपने अगर आपने दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है, और उसकी मार्केट में नीड ही नहीं है या वो आप सेल ही नहीं कर सकते, तो उसका कोई फायदा नहीं. राइट. लेकिन अगर आपने दुनिया का सिंपलेस्ट प्रोडक्ट बनाया है और आपकी मार्केट में एक नीड है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो दैट विल, एक खास एंटरप्राइज स्पेस में, ठीक है ना, नॉट B2C. लाइक मैं फेसबुक जैसे प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ CRMs की, मैं बात कर रहा हूँ ERPs की. तो अगर आपने मतलब छोटा सा प्रोडक्ट बनाया है और आपको सेल करना सही आता है ना, तो you're going to make it, ठीक है. अब इसकी एग्जांपल है Siebel, ठीक है. Siebel, when I joined 2010 in Australia, was the market leader of CRMs, and they did, like, let's say they did 100 different features in the CRM world, like just make number throw kar, ठीक है ना. Salesforce just did 20, but they did 20 really well. They said, we just do 20% of what Siebel does, but we do it really well, and we don't require all of this infrastructure here. And they went in and they started their product like that, and they sold it really well. They sold it to people and they made, और feedback ली उन्होंने market से, उसको उन्होंने ecosystem बनाया, ठीक है, उस ecosystem को फिर उन्होंने sell किया. So selling जो है ना, वो is a skill that I think takes you more further in your career than, it's not like product management isn't good. I mean, that's why I have chosen product management. लेकिन उसके अंदर मेरा ख्याल है जो sales का experience था ना, that actually helped me a lot in landing this role and being more successful in this role than I would have without being tech sales. अच्छा, you talked about a few times about कि fast का जो graduating student है, he should
he or she should look into sales. तो based on your experience, आपने तो चलें बाद में MBA कर लिया, लेकिन अगर फास्ट का let's say कंप्यूटर साइंस का कोई ग्रेजुएट या इवन फॉर दैट मैटर इंजीनियरिंग का भी कोई ग्रेजुएट अगर he's just graduating, तो क्या ट्रैक पाथ होगा to get into technical sales या product management role? Obviously he cannot get into it right away, लेकिन जो let's say 3-year plan या 5-year plan, किस तरह वो अपने आप को मैनूवर करे? देखो यार, इसमें ना दो तीन चीज होती हैं। जो सेल्स के जो रोल्स होते हैं, इनके अंदर देयर 2 और 3 मेन पाथ्स टू इट। लाइक एक तो आप प्योर सेल्स के थ्रू जाएं, ठीक है ना, उसमें एक लैडर होती है जो आपने क्लाइंब करनी होती है। उसमें पहला रोल जो होता है ना, वो आपका होता है SDR का। वो होता है कि एक बंदा फोन पे बैठा हुआ है और वो लीड्स आ रही हैं या लीड्स जनरेट कर रहा है, और वो ही passes on to a senior salesperson who takes it further. SDR से what does it stand for? मेरा ख्याल है उसको ना इधर SDR बोलते हैं, उसको सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मेरा ख्याल है इस तरह कुछ होता है। लेकिन वो एक बेसिकली एक मतलब somebody who sits on the phone and basically calls someone, ठीक है। तो उससे आप शुरू करते हैं। उसके अंदर आपके certain metrics होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं होता कि आपने कितनी चीजें सेल की हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपने कितनी लीड्स मतलब proper leads of people who are actually looking for a product or who's looking to solve a problem sent to sales team, ठीक है ना, जो उसको ले। फिर उसके अंदर you graduate from that, उसके अंदर उन्होंने रखे होते हैं कि भाई आपके ये टारगेट्स हैं, आप मीट करते रहें, you will keep climbing the ladder, ठीक है। ये तो सेल्स वाले का रोल। फिर वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनता है, फिर वो सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनता है, एंटरप्राइज में आते हैं। तो मतलब दिस इज द पाथ दैट द सेल्स पर्सन डज। टेक्निकल सेल्स के बहुत सारे रूट हैं। टेक्निकल सेल्स के लोग आते हैं कंसल्टिंग के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। कि फॉर इंस्टेंस अगर आप कंसल्टिंग में चले गए हैं, आपने एक प्रोडक्ट की इंप्लीमेंटेशन टीम में गए हैं, अब आप कहते हैं यार मैंने फ्रंट एंड मैंने 1 साल काम कर लिया इसमें, या 1.5 साल 2 साल मैंने काम कर लिया, नाउ आई वांट टू मूव इनटू अ टेक सेल्स रोल। तो वो भी बहुत अच्छा पाथ है, बिकॉज पीपल वांट पीपल इन टेक सेल्स हु अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन उसके अंदर फिर यू हैव टू प्रूव दैट यू अंडरस्टैंड सेल्स really well, because consultants sometimes have an issue of not being able to sell properly. Like that's what the industry thinks, but then you have to sort of वो आपका एक hoop है जो आपको क्रॉस करना होता है। फिर आपके कुछ इंडस्ट्री, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मतलब मैं बिल्कुल छोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन above 500 to 1,000 employees who would actually hire people, very fresh people out of university into a junior tech sales role, ठीक है। उसके अंदर आप डेमोज बना रहे होते हैं, you make a demo of a product, ठीक है। और वो भी एक बहुत अच्छा रोल है to start from, because demoing a product, like I was saying, is a totally a science in itself. It's not like आप features functions बना रहे हैं, आपने एक story line up, it's all about selling through a story. Like if you are like a story is if you are a marketing manager in a company, you come in every day and these are the things that you look at. Like उसको फिर आपने implement करना है product में, और आपने दिखाना है एक digital marketer कैसे चीजों को handle करता है daily basis पे। So that is one path. फिर कुछ paths ऐसे होते हैं कि कुछ लोग, जैसे मैं product management से sales में आया था, ठीक है। तो product management से भी आप sales में जा सकते हैं if you want to do that. If people want to यहाँ बहुत मैंने देखे हैं लोग जिन्होंने किया है। प्रोडक्ट मैनेजर्स थे 8-9 साल, उनका क्या करें, टेक सेल्स में चले हैं, तो टेक सेल्स में लोग ही हैं। सो मतलब देयर इज क्वाइट अ फ्यू पाथ्स देयर। लेकिन अब उधर एज अ फ्रेश ग्रेड, आई गेस द फर्स्ट 2 ones are the main ones I think that you can follow. सही। अच्छा, बीच में आपने एक वो भी बात की थी कि द नीड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि अगर आपने बहुत अच्छी भी चीज़ बना ली है लेकिन अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो किसी काम की नहीं है। तो आपने अगर कुछ बना लिया है और उसकी वाकई ज़रूरत भी है मार्केट में, तो हाउ डू यू डेमो इट? आई नो वी हैड लाइक सम प्रायर कन्वर्सेशन जब आपने कहा कि वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो maybe you want to talk a little bit about that. देखिए, जब आप प्रोडक्ट वो आप मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं ना, आपने एक मार्केट में प्रोडक्ट बना लिया, ऑब्वियसली एक नीड है उसकी, अब आपने उस नीड को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले तो आपके डेमो में ये होना चाहिए कि आपका डेमो जो है ना, इट शुड बी मेड अराउंड a business problem, ठीक है ना। it should show how you solve a problem. A problem is, I am like, for instance, if we go back to the Google Sheets example, कि मैं लोगों को
एक सेशन दे रहा हूँ और मैंने चीजें जो है ना प्रेजेंट करनी है, but I am doing it through Zoom. How do I solve the problem of communicating with my audience? You know, these 4 points, I want to make sure that these people will see them. I put them on a Google sheet, and I share it with all the people, and I show it within a Zoom. Like, that's the problem that I'm solving there. So the demoing of a product is, and the in the industry, खास पे enterprise की space में, now ये होता है कि अब आपने फॉर इंस्टेंस आपने एक प्रोडक्ट बनाया, लेट्स से आपने एक सीआरएम बना लिया, ठीक है, तो अब आप उस सीआरएम को मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो आप जिन इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं ना, आप उनके हिसाब से, मतलब रिटेल का आप एक डेमो बनाएंगे कि अगर मैंने रिटेल कस्टमर्स के पास जाना है तो उनको मैं कैसे अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। आप फिर बनाएंगे फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल इंडस्ट्री के हिसाब से बनाएंगे कि अगर मैं बैंक्स के पास जा रहा हूँ तो उसके अंदर मैं कैसे बेचूंगा। फाइनेंस के अंदर काफी ज्यादा आते हैं, फाइनेंस में इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, हेज फंड्स आ जाते हैं, फिर आपके ये जो रिटायरमेंट फंड्स हैं ये आ जाते हैं। तो आप इन सब को कैसे हैंडल करते हैं? कुछ एक ही डेमो बना देते हैं जिसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट डेमोज बनाते हैं हर एक के लिए डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। देन हायर एड, अगर आप यूनिवर्सिटीज के पास आजकल बहुत ज्यादा लोग जाके बेचते हैं, तो यूनिवर्सिटीज के पास जो बेचना है ना, हायर एड इज अ टोटली डिफरेंट स्पेस बाय इटसेल्फ। उसके लिए आपको यू नीड टू बी वेरी वेरी टारगेटेड, यू नीड टू बी वेरी हायर एड फोकस्ड। उसके लिए आप अपना डेमो बनाएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको बेचने जा रहे हैं। आप उसके प्रॉब्लम्स को देखें, आप उसकी इंडस्ट्री को देखें, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आप एक पिच बनाते हैं कि दिस इज एक स्टोरी है। और कई दफा ऐसा होता है, जैसा आप अभी अभी मैं देख रहा था कि अभी यहाँ बीच में कुछ सवाल वगैरह भी आए हुए थे चैट पे, तो मतलब इस तरह वो लोग ये तो इधर चैट पे सवाल कर रहे हैं, एवरीबडी इज म्यूटेड, बट इन अ सेल्स कॉल नोबडी इज म्यूटेड, anybody can interrupt you at any time, so you should be ready with your answers. You should know the industry that you're talking about. और जब आप कोई चीज बेच रहे होते हैं, ऐसी चीजें तो यूजुअली आपने खुद बनाई हो, तो आपको पता होता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सही। अच्छा, आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि वी टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट के क्या करियर पाथ होना चाहिए जब आप स्टार्ट करते हैं, इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट या टेक्निकल सेल्स। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल था 2004 में और अब 2020 के अंदर, लाइक 16 years later, how do you see that perspective changing, या कोई उसमें चेंज नहीं आई ज़्यादा? देखो यार, ऑब्वियसली अब मार्केट चेंज हो गई है, प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हैं। मतलब उस जमाने में प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोई इतना मेन रोल नहीं था, सिवाय मेरे ख्याल टेलकोज में था थोड़ा बहुत, और पाकिस्तान में, राइट? पाकिस्तान में या बड़ी कंपनियों में थोड़ा, उधर तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट तो वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, उन कंपनियों में तो थे ही नहीं प्रोडक्ट मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर कंपनियों में, बिकॉज दे वर डेव हाउसेस, ठीक है, उनके वो सेल करते थे, एक सेलर होते थे, उनके कंसल्टिंग के इम्प्लीमेंटेशन लोग होते थे, उनके डेवलपमेंट टीम्स होती थी। Those are the three roles that most companies had over there, ठीक है ना। मुझे याद है टेराडेटा में प्री सेल्स की नौकरियां थी बहुत कम उस जमाने, लेकिन अब ये है कि अब मतलब प्रोडक्ट मैनेजर्स जो हैं वो हर कंपनी में है, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हर इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर के डिफरेंट एस्पेक्ट है। मतलब बहुत सारे, आप उसमें चले जाएं या यूनिलीवर चले जाएं, पीएनजी चले जाएं, इनका प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं इनके। सो डिपेंड करता है, एक तो आप किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले, और दूसरा ये है कि आपने अपने आप को ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है। फिर आपने जो इंडस्ट्री रिक्वायर कर रही है, अब मेरा ख्याल है अभी तक उधर ये जो एफएमसीजी है उसके अंदर अगर आपने अभी भी अप्लाई करना है तो आपको एमबीए की जरूरत पड़ेगी, खासतौर पे। लेकिन अगर आपने बिजनेस साइड पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेक साइड पे कर रहे हैं, तो अब एमबीए की इस तरह कोई पीपल डोंट वैल्यू, से ज्यादा लोग कहते हैं कि जी आप एक्सपीरियंस लेकर आए, सही, या आप किसी मतलब डीप नॉलेज लेकर आए, मतलब आपने एनालिटिक्स में कोई मास्टर्स कर लें अपना, ठीक है ना। वो अब उस तरह एमबीए की वैल्यू नहीं रही जिस तरह पहले थी। दीज आर द थिंग्स दैट आर डिफरेंट। सही। और अगर जिस तरह, if somebody is still like an undergrad student at FAST, let's say, so once he graduates, he's not gonna become a product manager right away. पूरा एक career path है, लेकिन while he is at FAST, तो किस किस्म के skills he should develop, so that once the time is right, after like 2-3 years, he is like fully equipped to be a technical salesman, या फिर
product manager. देखिए जो टेक्निकल सेल्स के लिए तो जो रोल्स हैं, जो आपको प्रेजेंटेशंस आपको बहुत देनी होती हैं, ठीक है, यू हैव टू बी ओके विद दैट, you have to be okay with objection handling. These are skills that you know I see lacking in many people even 20 years after. ये आपका जो है ना, जैसे हम बहुत से लोग होते हैं मीटिंग्स में, they come in and they don't understand के ऑब्जेक्शन को किस तरह आपने हैंडल करना है, नेगोशिएशन कैसे करनी है, ठीक है, और नेगोशिएशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हर किस्म के रोल में होती है. तो आई थिंक ये जो सॉफ्ट स्किल रोल्स होते हैं ना, जिसके अंदर आपने लोगों को मैनेज करना होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी होती है, उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो. देखें जो टेक्निकल जो स्किल्स होते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी सिखाती है, लेकिन अगर टेक्निकल स्किल्स ही आपने सीखने हो तो आप एक वेबसाइट से कोर्स करके सीख लें, बड़ा आसान होता है, ठीक है ना. मतलब आप अभी आप जाएं यूडेमी पे जाएं, हर चीज का कोर्स पड़ा हुआ है. व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम लर्निंग देयर? बहुत सारे फ्री भी हैं, ठीक है ना. तो जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो मेन चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो है आप सॉफ्ट स्किल अपने लर्न करें, ठीक है. तो आपके अंदर मतलब पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी सी कभी कुछ लोगों की वीक होती है, कुछ लोगों के अंदर लाइक फॉर इंस्टेंस लाइक सेइंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीक होती है, और कुछ लोगों के अंदर दे डोंट अंडरस्टैंड नेगोशिएशंस दैट वेल, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स नहीं पता होते. आप जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, द प्रॉब्लम दैट यू हैव इज you don't understand the business world as well as you understand the technical world. So उसके अंदर फिर आप उन दोनों चीजों को जब ऑब्वियसली जब आपसे कहा जाता है कि यार अब आप जाएं और आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें बिजनेस की, तो आपको जब उस बिजनेस प्रॉब्लम का अंदाजा ही नहीं है तो कैसे हैंडल होगी, तो आप उसको कैसे मतलब आप हाउ विल यू सॉल्व इट. तो आपको थोड़ा सा उस बिजनेस अपने आप को टाइम देना चाहिए. जब आप निकलते हैं, आप जिस मर्जी रोल में जाएं, अपने आप को टाइम दें, आप उस रोल में से, और आप कोशिश करें कि जितना हैंड्स ऑन रोल है उतना बेहतर. अगर आप डेव का राउट लेना चाहते हैं इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो आप फिर हैंड्स ऑन डेव बने, ठीक है ना. आप वो डेव का काम करें और फिर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ आए. अगर आप टेक सेल्स के थ्रू आना चाहते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ, तो आप टेक सेल्स के डेमो इंजीनियर बने, ताकि आपको पता चले कि प्रोडक्ट कैसे अंदर बाहर काम करता है, ठीक है ना. ताकि आप जब उसके प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल के उसी कंपनी में, किसी और कंपनी में, उसी इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, तो यू कैन यूज दैट स्किल्स. और इसी तरह अगर आप कंसल्टिंग में हैं, अगर आप कंसल्टिंग के थ्रू आ रहे हैं, तो वही वाली बात है कि आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप योर करियर इज लाइक a set of Lego blocks that you build into a structure, ठीक है ना. वो Lego blocks आप शुरू में इकट्ठे कर रहे होते हैं 5-6 साल, so you have to make sure that the Lego blocks that you are working with, जरूरी ये नहीं होता कि कोई Lego block गलत है या कोई career path गलत है. Every career path is okay and every career path can be bad. It's up to you कि आप उसको कैसे नेविगेट करते हैं. हर बंदा इस डिफरेंट करियर पाथ से आता है, हर बंदा की लाइफ में चैलेंज आता है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, मैंने ये कर लिया, अब नेक्स्ट क्या. तो ये हमारे पेरेंट्स के जमाने में होता था कि मतलब वो गए आर्मी में गए, आर्मी से रिटायर हो गए, फिर किसी बैंक में गए तो बैंक से रिटायर हो गए. अब मतलब पीपल चेंज जॉब्स आफ्टर 2 to 4 years. तो आपको इसमें अपने आप को फिट करना है इस चीज में. सही चलें. अच्छा, meanwhile I'll just like to put it out कि अगर if somebody has any questions, feel free to send them to the chat box. इसमें 1-2 questions आए थे, उसमें से एक मैं पूछना चाहूँगा कि somebody is asking which aspect of the sales cycle or the process do you think is the most critical to closing the sale? बड़ा अच्छा सवाल है. सारे जो साइकिल्स हैं ना वो इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मतलब अगर मैंने को 10 साल ये इसमें ना काम किया है सेल्स में, एंड आई हैव सीन मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स ड्रॉप ऑन द लास्ट डे. एंड मतलब मैंने जो सबसे छोटी सेल की है ना, वो मैं $500 की एक लाइसेंस बेचने गया था एक जगह. तो मैं वो सेल्स वाला बंदा मजाक उड़ा रहे थे कि हम कंपनी ने हम पे पैसे ज्यादा लगानी है उसने जितने वो बनाएगी इसे, लेकिन वो हम एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बेचने गए थे, और फिर उसके बाद वो इवेंचुअली दैट बिकेम इनटू वेरी बिग अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन. तो ये उसको बोलते हैं लैंड एंड एक्सपैंड काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी. तो मतलब आई थिंक द मेन थिंग टू नो, अगर इस सवाल को अगर आप देखें कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ सेल्स साइकिल, इट इज कि आप जिस भी सेल्स साइकिल में, जिस भी पॉइंट में है ना आप सेल्स साइकिल के, आप उसके अंदर
आपके मतलब you should be at the top of your game, ठीक है ना? Just because customer ने verbally कह दिया हाँ मैं खरीदूंगा, it doesn't mean they will buy it, ठीक है ना? और obviously different times of the sales cycle, different things are important. Like अगर आप शुरू में गए हैं, आप customer पैसे पहली दफा मिल रहे हैं और आप उससे पैसे तो मतलब you will tank that stage, ठीक है ना? You have to know कि किस stage of the sales cycle पे मैंने क्या बात करनी है. शुरू में आपने उसको business value दिखानी है. वो पैसों की बात करे आपके ठहर जा यार एक मिनट तू पहले देख ले हो क्या रहा है, ठीक है ना? लेकिन जब आप एंड पे आ गए हैं और आप वो पैसों की बात करना चाहते हैं और आप कहने नहीं देखो मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, so you will actually lose. So you have to be talking about the right thing at the right time. You have to know कि वो चाह क्या रहा है पीछे से. What is it exactly that the customer wants. तो आपको obviously उस stage के हिसाब से वो बात करनी है. सही. If anybody else has any questions, feel free to send in. एक और था इसमें कि did you feel any effect after 2008 हाँ बिल्कुल. ऑस्ट्रेलिया? मैं 2008 में था नहीं, मैं 2010 में था, लेकिन उधर गया था. तो लेकिन 2008 you are right actually, वहाँ हुआ था, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था. वॉल स्ट्रीट क्रैश में मतलब बेसिकली वो यूएस की वजह से ही सारा कुछ हुआ था. लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का ये कि ऑस्ट्रेलिया हैज वेरी शील्डेड इकोनॉमी, तो उधर उस तरह फील नहीं हुआ था जिस तरह मतलब आपका यूएस में जितनी ले ऑफ्स हुए थे. इवन अभी इस कोविड की वजह से भी उधर इतना नहीं हुआ. तो उधर ये होता है कि उधर उधर जो इफेक्ट होता है वो हायरिंग खत्म हो जाती है. कहीं कहीं जगह मतलब फायरिंग भी चल रही होती है, लेकिन हायरिंग न्यू हायर्स नहीं आ रहे थे. सही. तो ये इफेक्ट था उधर. Since we touched, और ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन क्या मेजर दो आपने फर्क महसूस किए इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट? यार जब आप मतलब मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि जब आपने अगर पाइप लगाया हुआ है एक उस पे वाटर सोर्स पे, तो जो वाटर सोर्स पे उसका प्रेशर होता है वो पाइप के एंड पे नहीं होता. सही. तो आप समझ लें कि वाटर सोर्स वो है जहां पर सारी कंपनियां बैठी हुई हैं, यूएस है. ठीक है, और पाइप उधर है ऑस्ट्रेलिया में है, फिर सही. उससे एक पाइप निकल के पाकिस्तान जाता है, ठीक सही. है ना? सही. तो मतलब वो क्योंकि एपैक का हेड या वो होता है सिंगापुर होता है, तो मतलब वो ऑब्वियसली जॉब्स की जो डिफरेंट जो ब्रेड्थ ऑफ जो टाइप्स है ना वो बहुत छोटी होती जाती है, छोटी मार्केट. तो ऐसा उधर ऑस्ट्रेलिया में सेल्स और कंसल्टिंग के रोल्स है ज्यादातर. उधर एक या दो कंपनियां हैं जो बेसिकली एटलासियन है, जो जीरा वाली कंपनी है, बड़ी मशहूर है, वो उधर ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन उनका भी हेड ऑफिस उन्होंने भी सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट कर दिया हुआ है. सही. फिर अभी एक कल्चर एम्प है, छोटी कंपनी, ठीक है, वो ये एचआर कंसल्टिंग, वो अभी तक मेलबर्न में है. दे डूइंग रियली वेल, हमारा कंपेटिटर है क्वार्टर्स का. फिर एक उधर है ब्लैक लाइन, एक ये है ईआरपी काइंड ऑफ कंपनी है, ठीक है, ये बनाते हैं एसएपी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेजर मैनेजमेंट का, ये फाइनेंस के लिए. तो बैंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, छोटी कंपनियों के लिए भी उसके वो हैं. तो उन्होंने अपना हेड ऑफिस वहां रखा हुआ है. लेकिन ज्यादातर अब उस तरह पे तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल ही नहीं है, ठीक है, डेव टेक कंपनियों के प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल ही नहीं है वहां पे. तो उधर लेकिन कंसल्टिंग बहुत बहुत अच्छी है. मतलब इफ यू वांट टू डू, इफ यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो सेल्स में और उसमें जो कंसल्टिंग में सबसे अच्छी बात होती है कि एवरी डे यू हैव अ न्यू प्रॉब्लम टू सॉल्व, यू हैव अ न्यू कस्टमर टू गो टू, यू नो, सेल्स में खास तौर पे. और people who like, you know, a lot of change and a lot of new things happening, like sales is the thing for you, man. वो फिर उसके अंदर वो वहाँ बहुत अच्छी है, ठीक है. यहाँ भी ऑब्वियसली यूएसए में भी उसका डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ ये है कि 2-3 मेन सिटीज हैं, उसके अंदर ही आपने जाना है. यहाँ पर अगर आप समय यहाँ एक साल में सेल्स में काम किया था, मेरे को 15-16 सिटीज जाना पड़ गया था मुझे. ऑस्ट्रेलिया में मैं 2 मेलबर्न सिटी के अलावा मैं कहीं जाता नहीं था. सही. तो ये डिफरेंसेस हैं वहाँ की. ठीक. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे, उसके बाद we'll wrap it up. Do you think that with an informal sales experience in non-tech commodities can help in transferring to product management role? Non-sale, informal sales experience in non-technical commodities. अब informal नहीं समझ आ रही मुझे क्या है, लेकिन मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स हो गए, जिस तरह
ये हैं आपके लाइक नॉट फॉर अ कंपनी। देखिए जैसे अब आप फॉर इंस्टेंस अगर आप कह रहे हैं कि जी इधर से आ रहे हैं आप ये जो मतलब अपैरल की स्पेस से आ रहे हैं या एफएमसीजी की स्पेस से आ रहे हैं, लेकिन वो सेल्स का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपको, अगर आप टेक्निकल उसमें जा रहे हैं स्पेस में, तो आपको कुछ स्किल्स लाने पड़ते हैं जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, कुछ स्किल्स लाने पड़ते हैं जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं इन अ टेक्निकल कंपनी, ठीक है ना। तो अब फॉर इंस्टेंस आप इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पाइपिंग होती है या आपकी हार्डवेयर मशीनिंग होती है, ठीक है ना, इसके भी प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं। अब फॉर इंस्टेंस उसी तरह ही है कि मैं कहूँ कि मैं सॉफ्टवेयर से मैं उनका प्रोडक्ट मैनेजर बन जाऊँ। बोइंग जिस तरह यहाँ बोइंग है, ठीक है ना, बोइंग इंजन बनाती है या बोइंग जहाज बनाती है, मैं उन्हें कहूँ कि मैंने आपका प्रोडक्ट मैनेजर बनना है। तो मैं आ रहा हूँ एक डिफरेंट इंडस्ट्री से, मैं जा रहा हूँ एक डिफरेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। ये नहीं है कि बात कि वो हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन आपको फिर अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है उस रोल के लिए। उस रोल के लिए मैं बोइंग के लिए कैसे करूंगा, फिर आई विल ट्राई एंड सी कि मैं उसके कहाँ से कोर्सेज कर सकता हूँ, मैं कहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ उस स्पेस के बारे में, किस स्पेस में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर उसके अंदर फॉर इंस्टेंस मैं आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स अप, ठीक है ना, कैबिन एक्सपीरियंस का मैं प्रोडक्ट मैनेजर बन जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने जहाज में ट्रेवल तो किया है, मैं उस कैबिन के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं उस कैबिन, तो मैं उसको एनालाइज करूंगा, मैं कहूंगा कि यार क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिकॉज इंटरव्यूज में वो यही पूछेंगे, वो आपको फर्जी सिनारियो देते हैं कि यार ये आपका प्रोडक्ट है, ये उसके साथ हो गया है, अब आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। फिर आपने उसको इंटरव्यू के देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इससे बड़ी अच्छी एक बुक है क्रैकिंग द कोड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आई थिंक। वो उसके अंदर काफी अच्छी एग्जांपल्स हैं और काफी उसके में से टेक के हिसाब से ही हैं, लेकिन मतलब अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक कंपनी में आ रहे हैं तो वो किताब जो है आई थिंक इज रियली गुड टू रीड। और मतलब मैंने वो जिससे भी मैंने भी जब मैं मूव कर रहा था, जिनसे भी मैं पूछ रहा था, हर बंदा उसकी बात करता था। तो वो आप उस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत अपने आप को, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा। तो आपको उसके अंदर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह आप मतलब जिन प्रोडक्ट के लिए आप प्रोडक्ट मैनेजर बन रहे हैं, आप उनको कैसे बेचेंगे। स्टारबक्स इधर एक बड़ा मेजर एम्प्लॉयर है, उनके लिए भी लोग पढ़ा करते हैं, एक्सपीरियंस है, दे आर मतलब सॉर्ट ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री आ जाती है, वो एयरबीएनबी है। Acha, there's another question from Asad कॉम्पनसेशन, Safiullah about the compensation structure. How does it differ between sales and product roles? तो कॉम्पनसेशन जो सेल्स की होती है उसके अंदर जो टैक्स, जो सेल्स और प्योर सेल्स है उसके अंदर ये होता है कि आपको एक आपका बेस पे होती है और एक कमीशन होती है। जो सेल्स का पर्सन होता है ना, जो नॉट टेक सेल्स, द वन बिफोर हिम, उसकी कॉम्पनसेशन 50-50 होती है। 50% आपकी बेस होती है और द रेस्ट ऑफ द 50% यू गेट व्हेन यू डू 100% ऑफ योर सेल्स टारगेट। तो उसके अंदर इस तरह हो गया कि समझ लें आपकी $1,00,000 सेल है, आपकी सैलरी है साल की, $50,000 आपको साल में हर 12 से डिवाइड होके हर महीने मिलेंगे, और जो बाकी $50,000 है ना, वो आपको मिलेंगे एवरी टाइम यू क्लोज अ सेल। अगर आपका टारगेट है जी मेरा $1 मिलियन मैंने साल में क्लोज करने हैं, इफ यू क्लोज $1 मिलियन यू विल गेट दैट 50,000, ठीक है। लेकिन इफ यू क्लोज 1.5 मिलियन, तो फिर उसके एक्सेलरेटर्स हो जाते हैं और उसके ऊपर मतलब एवरी पेनी के अगेंस्ट एवरी डॉलर को $2 मिलता है, मतलब यू कैन मेक 200,000 300,000 लाइक दैट, पीपल मेक दैट, ठीक है। टेक सेल्स है, उसके अंदर 70-20 स्प्लिट होता है, उसमें ये होता है कि 70% ऑफ योर सैलरी या 80% ऑफ योर सैलरी, डिपेंडिंग ऑन किस कंपनी में आप, 80-20 या 70-30 होता है। तो लेट्स से वो 70-30 है, तो 70% ऑफ योर सैलरी यू गेट ऑन 12 मंथ्स डिवाइडेड ऑन 12 मंथ्स। जिस तरह आपका फॉर इंस्टेंस वही $1,00,000 वाले लेते हैं, $70,000 आपको मिलेंगे, ठीक है। और बाकी $30,000 का जो होता है ना, वो पूल होता है। वो पूल उसके अंदर ये होता है कि आप कहते हैं कि जी मेरी मैं सेल्स टीम का पार्ट हूँ, वो एंटरप्राइज नॉर्थ अमेरिका देखती है और उन्होंने इस साल अपना पूरा टारगेट किया है, मतलब दे हैड लाइक $50 million ऑफ टारगेट। तो देन ऑल द सेल्स टेक सेल्स पीपल विल गेट 100% of that 30,000. So if for instance they miss their target by 10%, then you will get 90% of that 30%. So it is, और इसी तरह अगर वो 120% 30% करते हैं तो आपके भी एक्सेलरेटर्स होते हैं, लेकिन वो पूल बेस्ड होता है, ठीक है।
फिर उसके अंदर जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आपकी बेस सैलरी होती है और प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके वो होते हैं KPIs के, उसके अंदर भी बोनसेस होते हैं लेकिन उसमें KPIs बेस्ड होते हैं कि आपका प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे थे, जो क्या प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की, ठीक है, आपका मैन, अब उसके अंदर फिर बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है बिकॉज आपके स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपके फिर आपका मैनेजर आपके आपके पीयर से पूछता है, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनसे पूछता है, फिर आपको एक रेटिंग मिलती है, उस रेटिंग के हिसाब से आपका बोनस डिफाइन होता है, लेकिन उसके अंदर बेस सैलरी मतलब क्लोज टू 90% होती है और बाकी जो 10% होते हैं वो बोनसेस और उस तरह की चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सही और फिर उसके अलावा और मतलब ये अगर आप अमेरिका में हैं तो उसमें इक्विटी वगैरह भी मिलती है उस तरह की चीजें। सही ठीक चलें thank you very much I think with that we'll come to a close of our session we'll still under like 1 hour so I think we covered a lot of stuff obviously you know we cannot do like everything go into detail of everything like if somebody wants to reach out to you तो कोई किस तरह या लिंक्डइन पे कर लें, मुझे ऐड आप कर लें अच्छा और या आप मतलब मुझे ईमेल कर दें। शहरियार महमूद राइट शहरियार महमूद है मेरा, आप उसके अंदर मैं उसके मेरे उसके नीचे में आप जो आपकी पोस्ट है उसके नीचे मेरा आप डाल दें, मुझे टैग कर दें। सही चलें आपने मैं तो वो ऐड किया हुआ है ना, हाँ मेरा जी मैं आपको तो ऐड हूँ। मैं वो कर दूंगा और उसके अलावा by the way this like I said in the beginning ये हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे तो if somebody wants to go there watch it at a later stage वो भी कर सकते हैं with that being said thank you very much Sharia bhai for your time really appreciate it was a very you know interesting discussion so hopefully you know we can do some like follow-up sessions in the future as well श्योर यार, एनी टाइम। so, all right thank you everyone for joining and have a good rest of your day wherever you are thank you and see you again soon. Hafiz.